Assalamu alaikum everyone. Myself Engineer Abdul Basit and I am Marketing Director of Sindh Educational Organization. Today we have our guest speaker Ms. Tayyaba Razak. She will be guiding us about the research roadmap and mastering the basis. She studied IR from NUST and currently she is serving as research associate at NUST Institute of uh, Policy Studies, and she is also acting as visiting faculty at School of Social Science and Humanities at NUST. So, without any further ado, over to you, ma'am. ठीक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैयबा रज़ाक। जैसे कि अली इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ रिसर्च रोड मैप मास्टरिंग द बेसिक्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस आई रियली वांटेड टू टेल यू कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ रिसर्च एंड व्हाई डू वी रियली वांट टू स्टार्ट द रिसर्च एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च। So if we look back into the history, we know that with all these research work and research data, अगर हम natural science में देखें या social science में देखें, तो हम लोगों को पता चलेगा कि through this research we have made many inventions and we have come through many knowledge gathering things. So now I want to ponder over here कि what is the purpose of doing research right now, and I have made this slide to understand कि हमारा goal क्या है. So the goal is to discover the new knowledge or a deeper understanding of topic. If we talk about the social science, तो social science का काम क्या होता है कि हम research gap find करें और उस research gap को फिर fill करके हम आगे research के ऊपर contribute करें. So we have 2 points. Number 1 is to find the research gap and second is to solve the problems. कुछ issues हैं. Let's say for example, अगर मैं कोई वुमेन रिलेटेड इशू लेती हूँ, कोई हरासमेंट का इशू लेती हूँ, कोई सोशल एस्पेक्ट लेती हूँ, लेट्स से, या फिर मैं नेचुरल साइंस का कोई इशू ले लेती हूँ, फर्स्ट करें मैं केमिस्ट्री कोई इशू लेती हूँ, तो मैंने उस रिसर्च के अंदर देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो इस रिसर्च के अंदर नहीं फाइंड की गई। लेट्स से अगर इजराइल गजा का ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट लेट्स से अगर नहीं कवर किया गया या उसका कोई अगर हम नैरो डाउन करें तो क्या चीज है जो वहां पर नहीं है, एंड वी आर सपोज टू फिल दैट रिसर्च गैप। सो द गोल इज टू फाइंड द रिसर्च गैप जो हम बेसिक्स की बात कर रहे थे एंड देन मूव फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स का मसला ये होता है जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है while teaching, that we are not clear on the foundations and we just start writing and doing things and learning from YouTube and all that. So we have to see that what is the basic foundation of our research. Are we clear on the foundations, and then we can move further on the research. So yes, I was talking about why research is important. Research is important to first of all make your career. आप किसी भी फील्ड में रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। आप सोशल साइंस में, नेचुरल साइंस में, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी भी फील्ड में है, रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। आप रिसर्च के बगैर एक्सेल नहीं कर सकते। अब बात ये है कि वी are researching, of course, when we surf and sit on while using mobile, so we are surfing and we are finding different aspects of research. But जो informed research होती है वो ये है कि आप अपने जो आपका रिसर्च एरिया है, जो आपका रिसर्च गोल है, यू आर गोइंग टू रिसर्च ऑन दैट specific aspect. So agar aapko, especially those people who have joined me here online, I would really emphasize कि अगर आपको international scholarships देखनी है, if you want to move abroad, as we are looking for different opportunities, if you are writing a research proposal or you are writing for a journal or you want to write articles somewhere in a newspaper, or if you are basically focusing on research, अगर आप student है, आपने thesis के ऊपर काम करना है, you are working on your FYP, so I would really recommend you to just clear your foundations, and that's why I am here. So अब research road map की बात करते हैं कि शुरू कैसे करना है। ठीक है, कोई भी अगर काम है रिसर्च का, थीसिस का, आर्टिकल का, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का, वी नीड अ रिसर्च पेपर, अ इन्फॉर्म्ड रिसर्च। उसको स्टार्ट कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन दैट व्हाई आई एम क्यूरियस। अच्छा, मसला ये होता है कि वी जस्ट डोंट नो द टॉपिक। हमें टीचर ने कोई टॉपिक बताया और उस पे हमने काम करना शुरू कर दिया। दैट इज नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सिट एंड राइट इट डाउन, व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एंड फ्रॉम लाइक
on what topic you are supposed to work, on what topic you are interested in, और उसके according want to you will narrow it down कि आप किस चीज के ऊपर curious हैं, and on what you are really enthusiastic to work on. So what problem are you trying to solve? And you need a clear guidelines. Please take it, and you have to understand this and take it seriously कि आपके पास guideline होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है. अगर आपका रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो believe me, you are going to get bored and you would really get exhausted and burn out. So before gathering the information and working on the literature review, I would suggest that write it down. जो आपके रिसर्च की एरियाज हैं, जो भी आपका डिग्री का एरिया है, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, just start focusing on the curiosity you have within you, and then you will start gathering the information. अच्छा, information gather कैसे होती है? Just go on Google Scholar and start surfing about any topic. ठीक है, उस टॉपिक को आपने पढ़ना स्टार्ट करना है. हमारा मसला ये है कि हम क्या करते हैं कि we just start clicking on a certain article and then we start reading it entirely. No, सबसे पहले आप जाएं आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर जाएं एंड उसको एक दफा पढ़ें. एब्स्ट्रैक्ट का पर्पस ये है कि उसको जब मैंने एक दफा देख लिया, then you have to like understand कि okay, whether it is like encompassing my own research area or not. So the purpose of literature review is to see, ठीक है, लिटरेचर का क्या मतलब है कि जो आर्टिकल्स हमारे पास पड़े हुए हैं, जो लिखा हुआ काम हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसको मैंने देखना है कि वो कितना कवर कर रहा है. ठीक है, और क्या वहां पर कमी रह गई है या क्या चीज है जो मेरे रिसर्च एरिया के साथ अलाइन कर रहा है, एंड इट इज गोइंग टू गो लाइक पैरेलल. And of course we can go to the library, academic journals. अच्छा, academic journals, students मुझे ये बात बताइए कि आप लोग को academic journals के बारे में पता है? Is there anyone who would like to explain about academic journals to me? अच्छा, student academic journals जो होते हैं वो जिस तरह HEC की scholarships होती हैं, उस तरह journals जो होते हैं वो recognized journals होते हैं. उनकी different categories होती हैं. Usually पाकिस्तान के अंदर Y categories हैं. वो एक proper informed research articles लेकर उसको एक review के अंदर डालते हैं और फिर एक research paper निकलता है. ठीक है, ये बेसिक आपको मैंने आइडिया दिया है कि आर्टिकल किसी रिसर्च जर्नल के अंदर क्या होगा या कैसे होगा. सो अब किसी एकेडमिक जर्नल का पेपर पढ़ना और किसी आम आर्टिकल का लिखे हुए पेपर पढ़ने में फर्क है, क्योंकि एक जर्नल के अंदर जो आर्टिकल होगा वो एक प्रॉपर इन्फॉर्म्ड रिसर्च से आया हुआ होगा और उसके डिफरेंट रिव्यूअर्स होंगे और वो एक ऑथेंटिक होगा, उसका DOI होगा. एंड वी विल मूव फर्दर बिकॉज मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी. बट द बेसिक इज कि जब आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, आपने प्लीज गूगल के ऊपर जाकर विकिपीडिया से चीज नहीं उठानी. You have to understand. You will type on Google Scholar खुलेगा, उसमें you have to write your title of any topic, और उसके अंदर academic journals के article आएंगे जो आपने research करनी है और उसमें से आपने आगे काम करना है. So then we have to see कि research method क्या होता है. तो research method, in the research method we have two types of methods, qualitative data and quantitative data. Quantitative में of course we play with the numbers और in simple terms, and qualitative जो होगा उसमें we explore experiences, insights, we do interviews, and जो usually we also focus on the secondary research. अच्छा, secondary research क्या होती है? जो already हमारे पास books पढ़ी हुई होती हैं, जो हमारे पास articles research पढ़े हुए होते हैं, वो उनको हम basically secondary data कहते हैं. So now I'm moving towards the analyzing data. The what is analyzing data? Once you have gathered the literature review भी और data भी ना, तो अब मैंने उसको देखना है कि अच्छा, जो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि ये मेरा, जिस मैंने स्टार्ट में आपको बात की ना कि रिसर्च क्वेश्चन बनाने से पहले मैंने देखना है कि मेरी क्यूरियोसिटी क्या थी. सो व्हाइल एनालाइजिंग द डेटा यू हैव टू सी कि मेरी वो क्यूरियोसिटी क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, और उस क्यूरियोसिटी के अंदर क्या चीज रह गई है, एंड आइदर आई एम एबल टू कनेक्ट द रिलेशनशिप विद दैट क्यूरियोसिटी और नॉट. एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स ऑफ कोर्स कंक्लूजन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स. के हम ऑफ कोर्स जब पब्लिश करते हैं तो दैट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग एंड पब्लिकेशन एंड further. So first of all what we did is we explored. ठीक है, मैंने
क्यूरियोसिटी देखी, मैंने एक्सप्लोर किया, मैं अपनी एरिया में गई, वहां पर जाके मैंने एक्सप्लोर किया एंड देन आई स्टार्टेड द डिस्क्रिप्शन पार्ट। ठीक है, मैंने उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, लिटरेचर रिव्यू की तरफ गई एंड नाउ माई माइंड विल डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग दैट आई हैव टू इंटरप्रेट समथिंग टू डू द रिसर्च। जब आप इट इज जस्ट लाइक ईटिंग समथिंग, जब आप दिमाग को कुछ फीड नहीं करेंगे ना तो आप लिख नहीं सकते। ठीक है, आपने एक जनरल चीज देखी है, आप उसमें नहीं लिख सकते। सो द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू फीड फर्स्ट and let your brain decide and interpret and analyze what are you going to write further. तो मूविंग टुवर्ड द रिसर्च डिजाइन की जैसे हमने बात की थी कि आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन के रिसर्च डिजाइन क्या है। अब हमारी बेसिक बनी है, बेसिक बनते हुए नाउ आई विल एक्सप्लेन कि क्या करेंगे हम, हमें कोई एक फ्रेमवर्क चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल दैट मेक एंड प्लान आउटलाइंस। ठीक है, टेक द पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग दैट ओके, अगर मैंने लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, फर्स्ट करें कि मैंने लेट्स से आजकल क्या इजराइल गाजा वॉर चल रही है। ठीक है, जो किसी भी रिसर्च एरिया के स्टूडेंट्स होंगे उनमें से किसी को भी आइडिया होगा कि ठीक है इजराइल गाजा वॉर चल रही है। सो नाउ आई हैव टू मेक एन आउटलाइन टू सी कि मैंने इस रिसर्च पेपर के अंदर क्या करना है। ओके, इजराइल गाजा इज द टॉपिक, एम आई कवरिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एम आई कवरिंग द एट्रोसिटीज, एम आई कवरिंग द लीगल पार्ट, एम आई कवरिंग द पार्टीशन एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, में क्या चीज कवर कर रही हूँ और किस चीज के अंदर मैं रिसर्च करूंगी। एंड देन आई एम लाइक राइटिंग एंड मेकिंग एन आउटलाइन। ठीक है, एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स मेथड। उसका मेथड क्या होगा? मेथड का मतलब ये है कि मैं क्या करूंगी, एम आई गोइंग टू गो टू पीपल देयर, लीगल पीपल देयर, एम आई गोइंग टू कंसल्ट द लीगल अथॉरिटीज एंड देन आई एम गोइंग टू इंटरव्यू देम। ये एक मेथड है। ठीक है, या फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटा है मैं उसको पकड़ूंगी और उस डेटा के अंदर देखूंगी कि अच्छा ये एक डेटा पड़ा हुआ है लेट्स से इजराइल गाजा पे और लोगों ने इस पे बात की हुई है, तो मैं उसी के ऊपर एक एनालिसिस कर लूंगी जी कि इतने लोग कह रहे हैं इजराइल ने ठीक किया, इतने लोग कह रहे हैं इजराइल ने गलत किया। ठीक है, ये डेटा एनालिसिस है। तो what we have to do is we have to outline what am I supposed to do first for informed and good research you have to write it down। ठीक है, अपने दिमाग को एक क्लैरिटी दें, अपने दिमाग के अंदर जो आप की चीजें मिक्स हुई हुई है, यू हैव टू राइट इट डाउन टू मेक इट क्लियर एंड देन यू विल गो टुवर्ड्स डेटा ड्रिवन अप्रोच। व्हाट इज डेटा ड्रिवन अप्रोच? ये क्या चीज है? इतनी मुश्किल जो टर्म्स हमारे माइंड को समझ नहीं आती, व्हाट आर दिस लाइक basic understanding that the design basically focuses on how you will gather information। ठीक है, this is data driven approach कि मेरा information collect करने का procedure क्या होगा to answer my research questions। कि मैंने कहा है कि इसराइल के अंदर humanitarian crisis हो रहा है and people are suffering there, but how am I going to gather this information? ठीक है, आप डिफरेंट लिंक्स के ऊपर जाएंगे, यू विल सी कि सम पीपल आर प्रो इजराइल, सम पीपल आर प्रो यूएस एंड सम पीपल आर यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेज, जो कि हम आगे जाकर भी बात करेंगे। सो यू हैव टू स्टे वेरी इन्फॉर्म्ड और आपका काम जो है वो डेटा ड्रिवन होना चाहिए। आपका लाइक पढ़ाई के ऊपर ज्यादा थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, फिर आपका काम रिसर्च का आसान हो जाएगा। एंड देन यू विल चूज द राइट मेथड कि मैं क्या करूंगी। ओके, यहाँ पे ना आपने कंफ्यूज नहीं होना बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर, तो आपको समझ आएगी राइट मेथड कैसे क्या होगा। ओके, अब नाउ आई एम गोइंग टू अली प्लीज अगर टाइम ज्यादा हो जाए तो प्लीज लेट मी नो बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, राइट? श्योर मैम। ठीक है, नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन पार्ट। हमारा जो एक्सेप्टेंस होती है ना यूजुअली इंटरनेशनली स्कॉलरशिप्स की भी, वो यूजुअली सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर देखते हैं। हम क्या करते हैं कि we just start writing the introduction and we are just clueless what to do। So ये जो मैंने because I would like to shift this here। okay, so ये जो मैंने बनाया है this is the basic understanding of writing any research paper के start में introduction की जो shape है ना it has science in it कि start कैसे होगा introduction journals like बहुत ही जनरल बात करनी है आपने। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक होंगे हम, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना तो हम एक बड़ी बात करके उसको छोटा करके लेके आएंगे। लेट्स से अगर मैंने बात करनी है इजराइल गाजा की, जैसे मैं उसको लेकर आ रही हूँ, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इजराइल गाजा वॉर, नो, I would like
to start from a general informed word that world is suffering from conflicts and history is, we have seen in the history that world is suffering, कोई भी इस तरह की लाइन दैट एनकैप्सुलेट्स इट. तो हमने जनरल बात करनी है, लाइक द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एट्रोसिटीज, इस तरह की बात आपने करनी है जनरल से. एंड देन वी विल मूव टूवर्ड, लाइक स्लोली वी आर गोइंग टू कवर आवर ओन टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि ओके, एंड नाउ वी हैव सीन प्रेजेंटली इन द कंटेम्प्रेरी इश्यूज, इजराइल गाजा वॉर इज इन द लाइमलाइट. ठीक है, तो इस तरह हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करेंगे. इंट्रोडक्शन लिखने का हमेशा ये तरीका है कि स्टार्ट में जो आपका अपना टॉपिक है ना, आपने उस टॉपिक को पहली लाइन में हरगिज नहीं लिखना. दिस इज अ मेजर मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, कि हम क्या करते हैं, वी लेट्स से अगर मेरा कोई टॉपिक है सोशल, यही लाइक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अलावा लाइक फूड सिक्योरिटी है, ह्यूमन सिक्योरिटी है, एनीथिंग, तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन सिक्योरिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम. नो, this is a disaster that we are making. We have to start from that human lives are suffering from different kind of issues. Write this sentence, उसके बाद अपने टॉपिक को आप आगे करें. ठीक है, एंड देन जो रिसर्च बॉडी है, रिसर्च बॉडी से हम क्या करते हैं यूजुअली, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग रिसर्च बॉडी लिखना शुरू किया करें, एंड में इंट्रोडक्शन को कंपाइल कर लिया करें. दैट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू. सो रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा. आपका इंट्रोडक्शन इतना मास्टर क्लास होना चाहिए कि कोई भी बंदा अगर इंट्रोडक्शन पढ़ रहा है तो वो इंट्रोडक्शन को देख के समझ जाए पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसको पेपर का आइडिया हो जाए. ठीक है, इट शुड बी जस्ट लाइक, जैसे कहते हैं ना, आप किसी चीज की समरी देते हैं, तो इट शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड परफेक्टली स्किल्ड लाइक रिटन समरी. एंड वो जैसे मैंने नीचे लिखा है ना, दैट रीडर डिसाइड्स टू रीड फर्दर, और कि उसने आर्टिकल ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना. सो आपने ऐसा इंट्रोडक्शन लिखना है कि आपको आगे फायदा हो. ठीक है, अगर आपने स्कॉलरशिप्स लेनी है, आपने एक दुनिया में नाम बनाना है, अपनी पोजीशन में नाम बनाना है, तो यू हैव टू लर्न दीज स्किल्स. व्हाट हैज हैपेंड टू माय, यस, ओके. इंट्रोडक्शन में हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले व्हाट इज नोन, रीडर को ये बताएं कि दुनिया में क्या चीज पहले हो चुकी है. ठीक है, देन उसको ये बताएं कि क्या चीज अननोन है. ठीक है, और फिर आपने एंड पे ये बताना है कि मैं ये काम क्यों कर. लेट्स से कि एवरीबडी नोज दैट people are suffering and we are facing different conflicts, and just like Kashmir में भी हो रहा है. So people know, and what is unknown? Unknown is what is actually happening there, and you are going to find it out, right? And how and why का जो क्वेश्चन होगा, that how you are going to find it out, कौन से रिसर्च मेथोडोलॉजी आप यूज करेंगे, यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन. एंड व्हाई यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इट आउट, एंड दिस इज गोइंग टू, लाइक यूजुअली जो आप इसमें लाइन लिखते हैं ना, इस तरह की होती है कि दिस इज गोइंग टू फिल द रिसर्च गैप एंड help the researchers to do the further research. ठीक है, तो okay, I have now broken this in different parts. कि what are you talking about? Context का मतलब है कि आप जनरल बैकग्राउंड कवर करें. ठीक है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा कि विद इन 1 or 2 सेंटेंस आप उसको कवर करें. उसके बाद यू हैव इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, किसी और ने लिया है, आपने वो इंटरव्यू सुन के वहां से बात निकाली है. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. क्वालिटेटिव डेटा जब सेकेंडरी डेटा के अंदर आएगा, तो जो एग्जिस्टिंग इंटरव्यू है ना, वो आपने नहीं लिया हुआ. प्राइमरी डेटा में आपने बंदे से डायरेक्ट इंटरव्यू लिया है, सेकेंडरी डेटा में आपने इंटरव्यू नहीं लिया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरव्यू के अंदर से आपने एनालिसिस निकाला है. ठीक है, ठीक है जी, लेट्स कंटिन्यू. सो नाउ मूविंग फर्दर, जहां पर हम थे, वी वर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी डेटा एंड प्राइमरी डेटा, एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई एम गोना आस्क यू अबाउट द इंटरव्यू. कि ये नहीं कहना कि मैम तैयबा ने सिखाया था कि इंटरव्यू सेकेंडरी डेटा में भी होते हैं. आई विल आस्क द क्वेश्चन अबाउट प्राइमरी डेटा में इंटरव्यू कैसे होता है और सेकेंडरी डेटा पे इंटरव्यू कैसे होता है. ठीक है, सो व्हाट आर द क्वालिटेटिव डेटा.
हम क्या करेंगे क्वालिटेटिव डेटा में, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च यूजुअली जो आप लोग आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं ना, आप लोग क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर फोकस किया करें। और आजकल पीपल आर वर्किंग ऑन दिस इंस्टेड ऑफ के प्राइमरी रिसर्च थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो यू कैन नॉट गो एंड डू द सर्विस, इवन पीपल आर नॉट फिलिंग द सर्विस राइट, तो आपको इश्यूज होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि क्वालिटेटिव डेटा के थ्रू आप करें कि यू हैव डॉक्यूमेंट्स, यू हैव जनरल ऑब्जर्वेशंस ऑफ योर्स, आपके पास फोकस ग्रुप। अच्छा, फोकस ग्रुप क्या है? फोकस ग्रुप ये है कि आपने एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक टाइप लोगों के ले लिए। लेट्स से मैंने अफगान रिफ्यूजीज कहा था, वो एक टाइप है ना, जो अफेक्टेड लोग हैं, जो एक केस स्टडी के ऊपर फॉलो करते हैं। तो आपने कहा है कि मैंने इस एरिया पे रिसर्च करनी है, ठीक है, या कश्मीर के लोगों पे मैंने रिसर्च करनी है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, फोकस ग्रुप के भी डिफरेंट तरीके होते हैं, तो आप किस पैटर्न के ऊपर उस ग्रुप को रखते हैं। एंड देन इंटरव्यूज इन द क्वालिटेटिव डेटा, इंटरव्यूज जो होते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूट्यूब पे कहीं पे भी वीडियो में पड़ा हुआ एक इंटरव्यू है जो किसी और ने लिया है, आपने नहीं लिया। आपने जब लिया है तो वो प्राइमरी होगा, ठीक है। सो अब हमने क्या किया है जी, हम यहाँ पर आए हैं कॉमनली रिकग्नाइज्ड क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजिकल ट्रेडिशंस पे। सो वी हैव 4 or 5 टाइप्स जो बेसिक्स हैं, ठीक है, इसके अलावा भी हैं, बट दीज आर द बेसिक्स जिसके ऊपर काम होता है। केस स्टडी, एथनोग्राफी, ग्राउंड थ्योरी, फिनोमेनोलॉजी एंड नैरेटिव अप्रोच, ठीक है। अब केस स्टडी हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? ओके, केस स्टडी में क्या होगा कि हमने क्या किया, किसी भी बंदे की एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन ली, ठीक है, कोई एक बंदा, कोई ग्रुप, कोई फिनोमेना, ठीक है, मैंने किसी की स्टोरी बतानी है, लेट्स से, तो दिस इज केस स्टडी। मैंने एक केस लिया है, मैंने एक कॉन्फ्लिक्ट लिया है, मैंने किसी की जिंदगी का मसला लिया है, दैट इज रिसर्च। ये एक केस स्टडी ली है। मैंने कायद आजम की जिंदगी ले ली है, लेट्स से, तो अब मैंने इमरान खान की जिंदगी ले ली है, मैंने लाइक शहबाज शरीफ की, तो हमने एक केस लेना है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ले लिया मैंने। सो दिस इज अ केस स्टडी। नाउ आई हैव टू गो थ्रू इसका डेटा कलेक्शन मेथड क्या है। इंटरव्यूज करूंगी मैं, ऑब्जर्वेशंस करूंगी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स में देखूंगी कि उस डॉक्यूमेंट में क्या था, पहले लोगों ने क्या बात की, अब क्या बात हुई। तो दिस इज द डेटा कलेक्शन मेथड। अच्छा, फिर एनालिसिस कैसे करते हैं, उसकी थीम्स बनाते हैं, ठीक है। ये एक नेक्स्ट लेक्चर होगा तो आपको आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग द फाउंडेशन। तो फिर ये सोशल साइंस की खूबसूरती ये है कि इट कनेक्ट्स विद साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आईआर, विद डिफरेंट हिस्ट्री एंड डिफरेंट डोमेन्स। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। जब तक आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं करेंगे ना, अच्छा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या है? हमारी वर्टिकल ग्रोथ ये है, इन सिंपल वर्ड्स, अभी लाइक लेट्स से मैं 17 ग्रेड पे हूँ, तो मेरी जो वर्टिकल ग्रोथ है ना, वो ये होगी कि मैं 18 पे गई, फिर 19 पे गई, ठीक है, दिस इज माय वर्टिकल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ सबसे पहले करनी जरूरी है, जो फाउंडेशन होती है कि मुझे किस किस चीज के बारे में पता है और कितना पता है, मेरे पास कितना नॉलेज है। मुझे अगर ये पता है कश्मीर है, तो क्या मुझे कश्मीर के मैप के बारे में पता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता है, उनके लोगों के बारे में पता है, उनकी नेचर के बारे में पता है, उस जमाने में कितने लोग रहते थे, पहले कितने लोग रहते थे, इसके बारे में पता है। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, कि मैंने हॉरिजॉन्टली अपनी इंफॉर्मेशन को ज्यादा किया और उसके थ्रू मैं एक्सपैंड करती गई। सो हमेशा हमने क्या करना है कि ऊपर तो जाना है, मगर साथ हमने हॉरिजॉन्टली भी एक्सपैंड करना है। दुनिया में और जिंदगी में इसका मकसद यही है, ठीक है। सिर्फ ऊपर हमने ऐसे नहीं जाना कि हमें कुछ भी नहीं पता। सो वी हैव टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इवन कल को आप लोग पॉलिसी राइटिंग में जाएंगे, आप लोग रूल ऑफ लॉ में जाएंगे, आप लोग बड़े बड़े ओहदों पे जाएंगे और अल्लाह इंशाल्लाह आपको लेके जाएगा, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। जो बात करें, बात के अंदर वजन होना चाहिए। तो वजन कैसे आएगा? थ्रू रिसर्च। सो व्हेन आई विल मूव टुवर्ड्स एथनोग्राफी, तो एथनोग्राफी में क्या है? अ मेथड फॉर स्टडिंग कल्चर्स। मैंने लोगों का मिजाज कैसे स्टडी करना है। लाइक इफ आई एम फ्रॉम पंजाब, तो आप पंजाबियों का मिजाज कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। अगर मैं सिंधी हूं, तो मैं सिंधियों का मिजाज कैसे अंडरस्टैंड करूंगी, उनके कल्चर से, उनके सोशल अंडरस्टैंडिंग से, उनके ग्रुप से, ठीक है। अगर अंग्रेज हैं, तो अंग्रेजों को मैं कैसे अंडरस्टैंड करूँ, उनके सोशल स्ट्रक्चर से ना, उनकी हिस्ट्री से मैं उनको अंडरस्टैंड करूंगी। इसमें कैसे आप डाटा कलेक्ट करते हैं कि जो ऑलरेडी, लेट्स से, जो सिंधी हैं आप लोग, ठीक है, मुझे ये है कि आप लोग सिंध एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो
मोस्टली यू विल बी सिंधी और पंजाबी और बलोची और पठान, ठीक है। तो मैंने अगर पठान पे रिसर्च करनी है तो मैं पठान का एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन लूंगी, ठीक है। मैं उस ग्रुप का लूंगी जो उस सिचुएशन के अंदर है, ठीक है। अगर मैंने सिंध पे करनी है तो मैं उनसे, सिंधी को बेहतर पता होगा ना उसका क्या मसला है, ठीक है। मुझे बाहर इतना नहीं पता होगा, जो सिचुएशन को अंदर है उसको मसला पता है, तो मैंने इस तरीके से रिसर्च करनी है। फिर आती है ग्राउंडेड थ्योरी, अ मेथड फॉर डेवलपिंग थ्योरीज बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। लेट्स से आपने कहा कि मैंने 1 महीना पूरा देखा और लोगों को के ऊपर महंगाई में ये इफेक्ट आया है, जैसे पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, तो पेट्रोल आपने रिसर्च की कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया और इसके महंगा होने की वजह से लोग सफर कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने ग्राउंडेड थ्योरी के ऊपर जो ऑलरेडी थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही हैं, लेट्स से एक थ्योरी एग्जिस्ट कर रही है कि जैसे ही पॉवर्टी ज्यादा होती है, जैसे प्राइसेस हाई होती है, लोग अफेक्ट होते हैं, लेट्स से एक थ्योरी है फॉर एग्जांपल। तो मैंने इस थ्योरी को अप्लाई करना है कि जी देखिए, एक थ्योरी थी जिसमें यह था कि गुर्बत ज्यादा हो रही है क्योंकि महंगाई ज्यादा हो रही है और ये अफेक्ट कर रही है लोगों को। अब आपने पेट्रोल वाला केस स्टडी लिया कि पेट्रोल महंगा हो गया है और ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बेसिकली ग्राउंडेड थ्योरी ये है कि एग्जिस्टिंग, ओके वी डू हैव चैट्स एंड आई थिंक पीपल आर आंसरिंग ओवर देयर। Mispa, no, both are not same. All right. So phenomenology पे आते हैं। A method for studying the subjective experiences for individuals. Subjective experience क्या होता है? Subjective experience ये होता है कि आप इमोशनल, एक होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है मैं हर चीज से इंडिपेंडेंट हूँ। फिनोमिनोलॉजी ये होता है कि आपके अंदर एम्पैथी है और जो उस सिचुएशन के अंदर बंदा है वो उसने जो एक्सपीरियंस किया है वो अपने इमोशंस के थ्रू बताएगा। लेट्स से अ कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया है समवेयर इन रवांडा, रवांडा में जिनोसाइड हुआ है, तो वो जिनोसाइड का सर्वाइवर अपनी बात बताएगा, ठीक है। जैसे हॉलोकॉस्ट हुआ था तो उसमें लोगों ने अपनी स्टोरी बताई, ठीक है, दैट वाज द इमोशंस। तो दिस इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स। नैरेटिव अप्रोच क्या होती है इसके अंदर? अच्छा, नैरेटिव अप्रोच और फिनोमिनोलॉजी में फर्क क्या है? अ मेथड फॉर स्टडीइंग पर्सनल नैरेटिव्स एंड स्टोरीज। जो फिनोमिनोलॉजी में ये होगा कि हमारे जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होंगे लोगों के, हम वो लिखेंगे, मगर जो नैरेटिव अप्रोच होगी उसमें हम पर्सनल नैरेटिव्स पे लिखेंगे। पर्सनल नैरेटिव क्या है? मेरा पर्सनल नैरेटिव है कि लेट्स से अफगान रेफ्यूजीज जो हैं वो इतना पाकिस्तान में अफेक्ट नहीं होते, ये मेरा एक पर्सनल नैरेटिव है नहीं, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। जो दूसरा इंटरव्यूअर है उसका पर्सनल नैरेटिव है कि जी अफगान रेफ्यूजीज आर बीइंग अफेक्टेड इन पाकिस्तान। तो दीज आर द पर्सनल नैरेटिव्स। आपने इन पर्सनल नैरेटिव्स को कलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर आपने देखना है कि इनमें दोनों में कितना क्या कॉमन है और कितना फर्क है, एंड देन यू आर गोइंग टू एनालाइज इट। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट स्लाइड, केस स्टडीज और एग्जांपल से क्या क्या रेलेवेंस क्या है? जी मैंने एक केस स्टडी ली और एग्जांपल ली, तो लोग अक्सर स्टूडेंट्स किस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि मैम केस स्टडी और एग्जांपल में क्या फर्क हुआ? केस स्टडी भी वही है कि हमने किसी की बात बता दी, एग्जांपल भी वही है कि हमने किसी की बात बता दी। नो, केस स्टडी इज दैट व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से, ठीक है, कि ये एक केस स्टडी है। और इन दोनों में फर्क ये है कि जो दूसरा लेट्स से जो एग्जांपल होगी उसमें ये आपने देखना है कि व्हाट दे आर रियली इंटरेस्टेड इन। लोग जब अपनी कहानी सुनाते हैं तो उसमें आपने डीकोड खुद करना है, ठीक है। तो एग्जांपल आप जब किसी की बताएंगे और इन दोनों को जब लेट्स से एक बंदा है, ठीक है, यू आर इंटरव्यूइंग समवन, सो व्हाट आर दे इंटरेस्टेड टू से एंड व्हाट दे एक्चुअली वांट टू से, इन दोनों का जब रिलेशन बनेगा ना तो आपको बीच की बात समझ आ जाएगी। दैट इज द रिसर्च गैप, दैट इज द रेलेवेंस जो आपको चाहिए। प्लीज राइट योर क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आई वुड बी रियली ग्लैड टू आंसर, बट क्योंकि मैंने अभी चैट बॉक्स नहीं खोला हुआ so I don't know if you want to ask something in between the lecture or not. So methods used in qualitative analysis, बस थोड़ी सी स्लाइड्स रह गई हैं, वी आर अबाउट टू एंड। तो मेथड्स क्या यूज करेंगे हम? देखें, कुछ थीम्स होती हैं,
ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू ऑर्गेनाइज द डेटा थ्रू लिटरेचर रिव्यू, वी हैव टू गो थ्रू द लिटरेचर एंड एक्सटेंसिवली। ठीक है, जब आपको ये लगता है ना कि आपने रिसर्च करनी है, एक अच्छी रिसर्च ये है कि आप एटलीस्ट 1 महीना तो लगाए ना पढ़ने में, रोज एक दो दो तीन आर्टिकल्स पढ़ें, ये एक प्रॉपर इन्फॉर्म्ड रिसर्च है। उससे फिर आपको पता चलता है कि मैंने क्या थीम बनानी है। थीम यूजुअली क्वालिटेटिव डेटा के अंदर होती है, ठीक है। और आजकल आपने थिंक टैंक्स के अंदर देखा होगा कि ग्राफिक्स आते हैं। वो ग्राफिक्स कैसे आते हैं, वो पहले डेटा गैदरिंग से आते हैं, फिर उनकी थीम्स बनती हैं, दिस इज अ होल प्रोसीजर इन इट, वो ऐसे ग्राफिक नहीं आता। अच्छा जी, थीमेटिक एंड कंटेंट एनालिसिस रिसर्च पेपर के अंदर यूजुअली इन द क्वालिटेटिव डेटा, बिकॉज वी आर कवरिंग द क्वालिटेटिव डेटा लाइक मोर। तो थीमेटिक एनालिसिस ये होता है कि आपने क्या किया, डिफरेंट रिसर्च डिजाइन्स के थ्रू डेटा लिया और उसका एक स्ट्रक्चर बनाया। अच्छा, इसमें थीम लगाई है आपने, थीम कोई भी हो सकती है, कोई थ्योरी आप लगा लें, लाइक कोई थीम बनानी है आपने। अब ये थीम कैसे बनेगी, दैट इज अ डिफरेंट लेक्चर। सो लाइक रिसर्च पेपर में या थीमेटिक एनालिसिस लगता है, या कंटेंट एनालिसिस लगता है। अच्छा, अब ये एक बड़े मजे की चीज है, डिस्कोर्स एनालिसिस। व्हाट इज डिस्कोर्स एनालिसिस? डिस्कोर्स क्या है, सबसे पहले मैंने ये समझना है, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द रिसर्चर्स, फॉर एवरीवन एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड एंड यूजिंग सोशल मीडिया। Discourse analysis is important for them to understand. And I really want your attentiveness. अगर आपने ये चीज समझ ली ना, आप लोग की जिंदगी आसान हो जाएगी। Not for research, for your basic life rules. कि डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है? लोग जो बात करते हैं ना, उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, उसका पीछे एक मकसद होता है। जो लोगों ने बोला है, लिखा है, कहा है, रिसर्च की है, वो डिस्कोर्स है, ठीक है, वो प्रोड्यूस हुआ है। आप बीइंग अ रिसर्चर डिस्कोर्स एनालिसिस करेंगे। लेट्स से मेरा एक इंडिया का यूट्यूब चैनल है, और द वुमन इज लाइक वेरी नोन, आई थिंक शी इज पलकी शर्मा, ठीक है। अब आप उनके वीडियोस देखें, शी इज लाइक फ्रॉम इंडिया, ठीक है, और वो क्या कर रही हैं कि वो डिफरेंट एनालिसिस कर रही हैं। तो समटाइम्स अगर आप उनके वीडियो देखें तो पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रही होती है कि पाकिस्तान ये है, इमरान खान ये है, यू नो, इन ऑल दैट। सो अब डिस्कोर्स एनालिसिस आप कैसे करेंगे? आप ये देखेंगे कि ये जो बोल रही है, इनका बैकग्राउंड क्या है, वो इंडिया से है, ठीक है, इनका पर्पस क्या है। सो इस तरह जो एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, इजराइल को जो लोग सपोर्ट करते हैं वो इजराइल की सपोर्ट में लिखते हैं, ठीक है, और वो इस तरह से लिखते हैं कि पता नहीं चलता कि इजराइल की सपोर्ट हो रही है। लाइक ये नहीं लिखेंगे। अब मैं डिस्कोर्स का एग्जांपल देती हूँ, जो एक्चुअली पैलेस्टाइन को सपोर्ट करेगा ना, पैलेस्टाइन को, वो लिखेगा कि इतने फलस्तीनी मारे गए, ठीक है, और इजराइल ने इतने बम फेंके, इतने मिसाइल से ये हुआ, इतने बच्चे जो हैं वो मारे गए। बट एक और रिपोर्ट आर्टिकल में आप देखिएगा जो ये आती है दैट several people were killed in the bombings. What does that mean? There is no Palestine person. There is no there is nowhere they have mentioned about children. ठीक है, nowhere about civilians, nowhere about laws. तो इस तरह की खबर आएगी, ठीक है, कि जनाब इतने लोग मर गए बम से, कौन मरा, किसने मारा, कैसे किया। तो ये चीजें जो है ये छुपाई जाती हैं। आप लोगों ने जब भी किसी भी टीवी चैनल पे, किसी भी मीडिया पे, कहीं पर भी कुछ सुनना है तो मेक श्योर कि आप उसका बैकग्राउंड देखें कि वो कहाँ से, कोई भी इंसान है, इवन मैं भी हूं, कि मैं कहाँ से बात कर रही हूँ, व्हाट इज द बैकग्राउंड। इनके लाइक ऑफ कोर्स हर इंसान का एक बैकग्राउंड है, एक बैकग्राउंड नॉलेज है, उसकी वो कहाँ से बिलोंग करता है। अगर कोई बंदा इंडिया का है तो इंडिया से के ही कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा ना। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि लाइक रिसर्च एक्सटेंसिव है, रिसर्चर जो होता है वो कभी भी सुनी सुनाई बात पे, ट्विटर पे है, सोशल मीडिया पे, एनीवेयर, रिसर्चर ने कभी भी उस पर यकीन नहीं करना, अपनी रिसर्च करनी है। जो लिखा है ना, अगर कि यहाँ पर जी एक एरिया में प्रोटेस्ट हुआ और लोगों को मारा गया, लेट्स से फर्स्ट करें पुलिस ने मारा, तो आप बीइंग अ रिसर्चर इस पे यकीन नहीं करेंगे। आप जाकर देखेंगे, सारी अखबारें निकालें, खोलें, देखें डिस्कोर्स क्या प्रोड्यूस हुआ है, कौन क्या बात कर रहा है,
either people are being paid और कौन उनको पे कर रहा है. सो डिस्कोर्स कंट्रोल किया जाता है लोगों का दिमाग शेप करने के लिए, माइंड शेप करने के लिए, और आप जो है वो उसके विक्टिम मत बने. सो डिस्कोर्स एनालिसिस की मैं बात करी थी. जो रिसर्चर है वो क्या करता है, वो डिफरेंट स्पीच लेगा, डिफरेंट इंटरव्यूज लेगा, डिफरेंट आर्टिकल्स लेगा जिसमें ये बात होगी. लेट्स से मैंने इजराइल की बात की, अच्छा ठीक है, मैंने इजराइल की बात की, तो इजराइल से रिलेटेड मैं आर्टिकल्स कवर करूंगी फ्रॉम अल जजीरा, ठीक है, फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर, ये डिफरेंट नोन वेबसाइट्स है. सो यहां से मैं देखूंगी कि अच्छा अल जजीरा ने लिखा है कि पैलेस्टाइन के इतने लोग मारे गए, ठीक है, रफा पे और गजा पे ये हमला हुआ. मगर कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर कह रहा है कि इजराइल एक स्टेट है, हालांकि उसको स्टेट बहुत सारे स्टेट्स ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, इवन पाकिस्तान भी नहीं करता. तो आपने वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, फिर आप रिसर्च करेंगे कि जी ये डिस्कोर्स एनालिसिस मैंने किया है और इसके बारे में ये लिखा हुआ है, ठीक है. अच्छा जी, नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. मुझे ये कैसे पता चलेगा, मैंने पूरा रिसर्च आर्टिकल लिख लिया है, रिसर्च गैप कर लिया है, मगर हाउ अ रीडर एंड अनदर रिसर्चर जो कि आपका रिसर्च पेपर पढ़ रहा है उसको ये कैसे पता चलेगा कि ये रिलायबल कितना है, कि क्या मैं इस पर रिलाय कर सकती हूँ, कितना ये वैलिड है. तो इसके लिए मैंने ये एक डायग्राम डाली है. रिलायबिलिटी, अच्छा जो पहली है ना उस पर फोकस करें. जब किसी भी रिसर्च का आंसर बार बार सेम आएगा, लेट्स से मैंने इंटरव्यू किए और सबके इंटरव्यूज के जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने मुझे यही कहा कि जी इजराइल ने ही फिलिस्तीनियों पे जुल्म किया, सबके आंसर्स वही आ रहे. तो ये जो ब्लैक डॉट है ना, ये क्या इकट्ठे है ना, मतलब एक ही जगह पे, तो इसका मतलब है ये रिलायबल है, द आंसर इज कंसिस्टेंट. अब नाउ गो टुवर्ड्स द सेकंड सर्कल जहां पे लिखा है लो वैलिडिटी, लो रिलायबिलिटी. यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा. अच्छा एक चीज, जो सबसे मिडल में एक छोटा सर्कल है ना, जो छोटा डॉट है, वेयर इज हाँ, ये इसका मकसद ये है कि ये मेरा रिसर्च का जो मुझे आंसर चाहिए ये वो है. तो जब लो वैलिडिटी होगी तो इसका मतलब है मुझे जो जवाब चाहिए था वो ये था कि फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, मगर लोगों ने रिस्पॉन्स दिया नहीं में, ठीक है, तो इट इज नॉट वैलिड, क्योंकि जो आपने रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च गैप कवर करना था वो आपका आंसर ही नहीं आया, इसका मतलब है आपका रिसर्च क्वेश्चन गलत है. सो द थर्ड जो रिलायबिलिटी पे मैंने बात की, ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि ब्लैक डॉट्स जो है वो लाइक ये जो मिडल वाला डॉट है उसके करीब जरूर आ गए हैं ब्लैक डॉट्स. आपका आंसर समवट वैलिड हो सकता है लेट्स से, मगर यहाँ पे आप रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है. क्लोज टू वैलिडिटी आपके आंसर आ रहे हैं मगर रिलायबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अलग अलग है. इसकी डायग्राम की समझ ना आई तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा. ये जो लास्ट है ना, दिस इज बोथ वैलिड एंड रिलायबल. हाउ? ओके, क्योंकि जो ब्लैक डॉट्स हैं वो आपके रेड डॉट के ऊपर है, इसका मतलब है जो मुझे जवाब चाहिए था वही जवाब इंटरव्यूअर्स ने दिया, नंबर 1. नंबर 2, सबके जवाब सेम आए, सो इट मींस माय रिसर्च इज आल्सो वैलिड एंड रिलायबल. सो वैलिडिटी क्या कहती है, जब कोई भी मेरी रिसर्च वैलिड होती है तो इसका मतलब ये है कि मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरी रिसर्च के ऊपर लोग डिपेंड कर सकते हैं, मेरी रिसर्च के ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं. ये सारी चीजें चाहिए होती है वैलिडिटी में, कि ट्रस्ट वर्दीनेस हो, कितनी ऑनेस्ट है आपकी रिसर्च, क्या आपको किसी ने पैसे तो नहीं दिए थे लिखने के लिए, ठीक है, जिसमें आपने जो है जो आपका आंसर निकला रिसर्च का वो आपने जो है वो चेंज कर दिया कि पाकिस्तान में नहीं है जी पॉवर्टी, कोई मसला नहीं है, तो जी यहाँ पर काम चल रहा है, ठीक है, सीपैक का प्रोजेक्ट जी चल रहा है, ठीक है. तो यू हैव टू बी ट्रस्टवर्दीनेस, यू हैव टू रिलाई ऑन योर एक्चुअल आंसर्स. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर पाकिस्तान, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द फ्यूचर. सो वैलिडिटी किसी भी रिसर्च की क्या होगी, दैट इट शुड बी क्रेडिबल, आपके ऊपर डिपेंड किया जाए, ठीक है. बड़े बड़े रिसर्चर जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स बैठे वो आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करें कि आपने जो प्राइमरी रिसर्च की है वो ठीक की है, आपने ऐसे नहीं की. अच्छा ट्रस्टवर्दीनेस और कंफर्मेबिलिटी का ये भी है, ये लेट्स से आपकी रिसर्च कंफर्म कैसे होगी कि आपने बीच में ये नहीं कहा कि अच्छा चलो ठीक है मैंने 100 लोगों का इंटरव्यू करना था, अब मैंने 80 लोगों को कर लिया तो खैर है, सबका सेम आंसर यार, हो सकता है 20 लोगों का गलत आए. सो यू हैव टू
बी स्ट्रिक्ट, कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट इन योर रिसर्च प्लीज, वरना बहुत पेपर पढ़े हैं, या आप गूगल में चले जाए, बहुत पेपर पढ़े, कोई फायदा नहीं है फिर इस तरह का पेपर प्रोड्यूस करने का। सो या अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए बेसिक क्लैरिटी के लिए मैंने आपको ये बताया कि वैलिडिटी क्या है, कि रिजल्ट्स वो ही आए जो मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च था, ठीक है, जो मैंने निकालना था रिजल्ट, वही रिस्पॉन्स में रिजल्ट आया, ठीक है। एंड रिलायबिलिटी क्या होगी कि रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट, सब रिस्पोंडेंट्स के जितने भी मैंने सर्वेस किए, जितने भी इंटरव्यू किए, उनका आंसर कंसिस्टेंट ही था जी। अब ये मैंने क्यों डाला है कि लेसन्स आर नॉट गिवन, दे आर टेकन। मैं यहाँ पर बोलती रहूंगी, ठीक है, कल को कोई और आएगा, वो लेक्चर देगा, वो बोलेगा, बट आप लोगों ने इसको कैसे समझना है, कैसे लेना है। दुनिया में हर बंदा आपको आकर लेक्चर देगा, आपने अपना फायदा देखना है कि आपके लिए क्या फायदा है, आपके फ्यूचर के लिए क्या फायदा है। तो यू हैव टू टेक दीज लेसन्स, ठीक है, आई एम गिविंग दीज लेसन्स बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक इट, ठीक है। आपने आज सुना, नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू हेल्प अदर्स, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। सो if you have any questions please feel free to ask। क्लास में यूजुअली ये होता था कि स्टूडेंट्स जस्ट डोंट वांट टू आस्क क्वेश्चन जस्ट फॉर द सेक कि मे बी ये कोई लेम क्वेश्चन है या मुझे अंडरस्टैंडिंग, अगर किसी लफ्ज की भी समझ नहीं आई आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे समझाने का है। आई एम नॉट हियर टू जज यू एट ऑल, बिकॉज बीइंग अ टीचर आई नो दैट बेसिक क्लैरिटी जरूरी है, इवन एक बंदे को भी समझ आ जाएगी तो बहुत जरूरी है। सो नेवर बी अफ्रेड, इवन नॉट इन दिस सेशन, इन योर एंटायर लाइफ, whoever is listening, never be afraid to ask dumb questions। आपको तब समझ में आएगी जब आप पूछेंगे, तो you are free to ask anything and it is better to know something and it's better to know कि आप questions रखें दिमाग में। अगर सब समझ में आ गया तो भी मसला है, क्योंकि अच्छा दिमाग वही होता है जो आगे से सवाल करे और सोचे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज कोई भी आपको क्वेश्चन होगा इवन आफ्टर द सेशन यू कैन जस्ट write my email. This is my email, tayyibarazak97@gmail.com. You can email me anytime, inshallah, although I have a very packed schedule, but I will try my best to answer you. I'm open for the questions, please. Ji Kainat, how we publish our article? Which article? Journal article की बात करेंगे या different magazines के articles की बात करेंगे? अच्छा बेटा, सबसे पहले आपने ये करना है कि आप जिस मैगजीन में जाना चाहती है ना, आप उसका देखें कि वो क्या चीज कवर कर रहा है, आपका सोशल एस्पेक्ट है, आपने किस पे ऊपर बात करनी है, उससे रिलेवेंट आप देखें कौन से जर्नल से, ठीक है, जे से जर्नल, ठीक है, वो वाला आपने जर्नल निकालना है और देखना है कि उनका स्पेसिफिक एरिया क्या है। अब कॉल फॉर पेपर आता है, तो कॉल फॉर पेपर में फिर वो कहते हैं कि हम कौन से एरियाज को कवर करेंगे, तो इस तरह पब्लिश करते हैं। यू हैव टू मैसेज द एडिटर एज वेल। अगर मैगजीन में करना है तो देखिए मैगजीन का एडिटर कौन है, तो आप उनको मैसेज करें। यूजुअली ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी पोर्टल खुला होता है और आप सबमिट करा सकते हैं। एंड आप ऐसा करें कि मुझे अपनी ईमेल करें तो आई विल गाइड यू फर्दर, ठीक है। ऑलराइट कायनात, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी इसरा, दोनिया एज वेल, नो इश्यूज, थैंक यू कायनात। इज दिस दोनिया? Please ask the question. I recently wrote a thesis on the topic of dreams with psychological aspects. I want to publish, but I can't seem to understand where I should start to look. All right. Psychology के ऊपर आप देखेंगे जर्नल्स कौन से हैं, ठीक है, उन जर्नल्स का कॉल फॉर पेपर आता है, आप उनका कॉल फॉर पेपर देखें। उसके अंदर फिर डिमांड होती है अकॉर्डिंग टू कि आपको शिकागो मैनुअल स्टाइल चाहिए, एपीए, इट्स ऑल राइट, एपीए चाहिए, तो दुनिया प्लीज ईमेल मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू पब्लिश दिस, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के भी, एंड आई थिंक वी कैन मूव फर्दर। तो आप प्लीज क्योंकि मैं लाइक आई कैन नॉट राइट द ईमेल्स राइट नाउ, सो ईमेल मी, आप यू कैन आस्क अली एंड आई विल डेफिनेटली सेंड यू द लिस्ट जहां पे आप पब्लिश कर सकती हैं। यस, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी इसरा, Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your insightful session. It was very much informative. और actually मैं अभी undergraduate level पर हूँ और I am recently working on my research project. मेरा जो topic है
एक तो वो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, वो है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, क्लासरूम इंटरेक्शन से। ठीक लेकिन है। मुझे उससे इतना कोई कंटेंट मिल नहीं रहा। जो आइडिया मैंने उठाया है वो है तो बहुत सारा ब्रॉड, लेकिन मुझे उस पे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा और आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स। तो उस आपने सिचुएशन में आपने मैं क्या अच्छा बेटा करूँ? ठीक है, मैं समझ गई। आपने गूगल स्कॉलर जाकर देखा, उसमें नहीं मिला आपको? अच्छा, आप ऐसा करें, गूगल स्कॉलर पे जाएं, उसमें आप जाकर सर्च करें। गूगल नहीं लिखना आपने, आपने गूगल स्कॉलर लिखना है। गूगल स्कॉलर पे जाके आप देखें, आर्टिकल्स मिल रहे हैं। अब कभी कभी ये होता है कि आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं मगर आप ओपन नहीं कर पाते क्योंकि वो पेड होते हैं ना। तो आर्टिकल्स हैं मगर आपका जो पेड वर्जन है ना, आपकी यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरियन के पास एक्सेस होती है। तो वो लाइब्रेरियन क्या करेगा, आपको वो आर्टिकल्स डाउनलोड करके दे देगा। फिर भी अगर नहीं मिलते, देन यू कैन ईमेल मी आई विद अलोंग विद योर टॉपिक, ठीक है। और प्लीज बता दीजिएगा आप इस सेशन की थी, तो मैं आपको एक दो लिंक सेंड कर दूंगी जिसके थ्रू आप मजीद अपने टॉपिक के बारे में पढ़ सकती हैं, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। No issues. Any other question? My laptop is just running out of the battery. I'm really sorry. And I don't have the charger. So if you have questions, please ask. Because I have one question and I'm going to ask this like last. One new message. चले, my question is number one, कि आप लोगों ने 2% बी ऑनेस्ट, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी ऑनेस्ट। अगर आप ना भी करेंगे तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि आप लोग को 2% भी कुछ समझ में आया है। बिकॉज द पर्पज ऑफ दिस लेक्चर वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई नीड आंसर्स। Was it helpful for you? Okay, thank you. Because मेरा पर्पस तब पूरा होगा जब आप में से किसी एक को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। And you can please message me on LinkedIn. I am usually not active on social media other than LinkedIn. तो आप LinkedIn पे जाएं, कोई सवाल होगा प्लीज वहां से मुझे मैसेज करें। I am always there for help. Otherwise, you can send me an email because I work in NUST Institute of Policy Studies. So I also teach students in NUST there. So I have a like packed schedule, but I have no issues helping you out. आप किसी भी टाइम रिसर्च से रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि ये नहीं समझ आ रहा, ये नहीं हो गया। बट आप जो है प्लीज फोकस करें। और आखिरी मेरा मैसेज ये है कि खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, जहां जहां आप लोग की जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला पूरी करे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैम एक क्वेश्चन है, उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। जी इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में आप कुछ समझा देंगे? इम्पैक्ट फैक्टर। अच्छा जी, इम्पैक्ट फैक्टर यूजुअली ये होता है कि कितने लोगों का ने आपका आर्टिकल पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कितना उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया। अब यूजुअली जो नेचुरल साइंस के लोग होते हैं ना, उनका एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है। जो सोशल साइंस के ज्यादातर लोग होते हैं उनका ये होता है कि कितने कितने बार आपको साइट किया गया। तो जितना अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर होगा, इसका मतलब है इतनी अच्छी आपकी रिसर्च है और इतने आपके चांसेस है मजीद बीइंग अ गुड रिसर्च। और इसमें मैम ये भी होता है कि रिसर्चर खुद ही अपने रिसर्च पेपर को नेक्स्ट रिसर्च में वो क्या कहें कि रेफरेंस कर रहे कोट होते कर हैं। देते हैं। क्वालिटी इसमें कैसे फिर हम कहेंगे कि कौन सा क्वालिटी मतलब क्वालिटी वाला अच्छा है? ऐसे नहीं, उसके साइटेशंस ज्यादा हैं और पेपर की। नहीं नहीं बेटा, देखें रिसर्चर कितनी दफा कोट कर देगा, एक दफा करेगा, दो दफा करेगा, ऐसे नहीं होता। क्योंकि कितने जो ऑथेंटिक रिसर्च पेपर है ना, वो इस तरह प्रोड्यूस नहीं होते। तो जब इम्पैक्ट फैक्टर हाई है, ठीक है, और आपने ये देखना पब्लिश कहाँ हुआ है। अगर लोकल जर्नल है वो रिकग्नाइज नहीं है तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर मैटर नहीं करेगा। जो लाइक रिकग्नाइज जर्नल्स है उनके इम्पैक्ट फैक्टर मैटर करते हैं। थैंक यू सो मच Vivek Kumar. I hope I'm pronouncing it right. And Manav, okay, I will share the slides, inshallah. Okay, ma'am. Thank you so much from SU, and Thank it was really insightful. I am myself a master student, और ये हम कोर्सेज पढ़ तो रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के, लेकिन जब तक खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ये किसी भी आप चीज की इसको, काम हाँ की नहीं है। ऐसा ठीक है, आप ऐसा करें, आप इसको इम्प्लीमेंट करें। और अगर जो ना समझ आया तो आप क्वेश्चंस बना के सेंड करें। हम उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एक और सेशन रख लेंगे जो आपके मसलों को एड्रेस करेगा, क्योंकि हमारा काम ये है कि हम मसला अपना सॉल्व करके फिर काम करें, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अल्लाह ठीक हाफिज। है, यू आर वेलकम।